की आवाज। पैराडाइज फंक्शन पैलेस। पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। First of all, I would like to introduce myself. My name is Muhammad Amir Khan. I have completed my masters in information technology. After that, I joined a company and IT company. I have been working in IT since 12 years. I have 12 years of experience in IT. I have been working in different projects in different locations. I worked in Saudi Arabia also for 2.5 years. I worked in Germany, Pune, Bangalore as well, in Hyderabad as well. So I have good exposure in IT. So worked in different projects with different clients as well. So I'll be using English language as well more, and request everyone you to improve your English as well from wherever you can. If you want to go to spoken English, go and learn it, because the competition is very much, and if we are discussing things in Urdu, that may not be like sufficient for us. If we go outside and face the competition, face the interviews, work with different people, those people will be very fast and they will be speaking in English, okay? And we need to be matching their skills as well. We need to be very fast and we need to be very advanced as well, since we are in artificial intelligence generation. So nothing is hidden, all the information, everything is open for us. We should not be like we don't know anything. We should be like we know speaking in English, and we should match people who are around us if you are working in corporate world. Okay, we should not make any excuse that I don't know English but still I want to work with because of so and so background, because of like Urdu medium or Telugu medium or like mother tongue language. So we should not give this excuse. So my words are very strict, but this is the fact. So we should speak good English. Even I am not like that good in English. I am also like among one of you. I don't rate myself as a like professional speaker or trainer or like an employee. So I'm just in a learning curve. I need also to learn many things. At the same time, I would like to like advise you with my limited experience, just to improve your spoken English skills. Do not waste your time like with unnecessary things, because the world is too fast nowadays, and learning English is must in any department if you are going. Okay. So along with that, I have a YouTube channel as well. I have more than 500 subscribers. My brothers like Ammar and Anas, two of my brothers who are sitting among ourselves. One is sitting out there wearing specs, smiling, looking at me. So he started telling me that this is a good platform to share your knowledge and people get benefit, and you also get benefit. You can learn things, and by explaining something you will get good understanding on the subject as well. So I am working in SAP HANA, so the same thing I am explaining in my YouTube channel. So I am having good followers, subscribers, and I get comments in my inbox as well. So I got quite popularity because of my brothers as well. So this is also a learning thing. If you have such interest to open your YouTube channel or to go somewhere and express your experiences also, this is a good thing. In the olden days, people don't used to express their experiences, thinking that my job will go, my demand will go, but this is not the right thing. You should share the knowledge. By sharing, you will gain the knowledge as well, you will improve the knowledge as well. So apart from that, I also train people. I have already taken SQL scripting course. I have already trained people, and also in SAP Native HANA. Besides that, I give career guidance as well. This does not mean that I know everything. With my limited knowledge and with my limited experience, whatever I know, I try to tell from my point of view and tell
whatever I know based on the questions what they asked with respect to the computer science career. So this is the brief about myself, and after that I would like to thank our management who are the in charge of our Zakat Center India Trust. So I would like to really thank all of you to arrange all these things. Nowadays, like for especially for ladies, these arrangements is not there, and our ladies are very backward in like private sectors, like in computer science or IT sectors. Even I work in many companies, but I don't see much Muslim or minority girls. So most of the girls or ladies comes from very good background. They are from cities or studies from very good colleges and knows how to speak in English very well. So this is most oftenly seen in IT companies. So now our to promote the girls especially, to provide them good services, and to make sure they are also getting equal chance to learn courses. And they have done a lot of research on what courses should be taken, and recommended us to take those courses and explain our students. So the courses whatever have been selected are very good courses. Okay, so take this opportunity and try your level best to take the advantage from here. So after learning this course, for example, like I hope many of you will select this course. So once you are done with this course, maybe it will take 5 to 6 months to complete this course. If you are very dedicated, definitely the results will be very good. That is guaranteed, inshallah. And once you are done with completing this course, so you can become a trainer. There are different like ways, different professions you can choose. You can choose as if you want to become a trainer or professor in colleges. Also nowadays, computer science is very oftenly like becoming a subject, and many people are interested to promote this computer science like course. So freelancers, definitely, sir has said in his speech in the beginning part of our program that one of the freelancers has took 25,000 amount for just spending 6 to 7 hours of giving service. This is a demand. This is a demand, and we require those kind of people. So we wantedly going to them and giving 25 to 30,000 just for spending very less amount of time. If I want to earn 25,000, it will take a lot of time. It will take 1 month as well. After working very hard, I may get that amount. Not only like working like 1 or 2 hours and getting that in 1 month. So after a lot of hard work, we'll get that amount. But here, because of this program, because of these courses, you can earn this very easily. But before going to that position, you need a lot of hard work. That lot of hard work should be done from you, and our management will make sure that they are providing the service for you. So take this opportunity and don't take it as a granted. If you face any issues, if you see like Amir is not explaining properly, say it to them. Amir English is not understandable, say it to them. I'll try to just adjust myself. So their intention is not to conduct this program and take publicity. Their intention is to just give the service to the students, especially minority and especially girls. And because of this service, you should get benefited. You are educated, you are qualified, you are having degrees and PGs, but you don't have jobs. That is what their service are. And their intention is to just minimize this or remove this part. They want you people also to work like other people. Because of so and so financial reasons or some other things, you might not be like getting the chance to learn things and meet the people who are working in big companies. So you have this opportunity. So I request you to take my words seriously and think about it and participate in the course in the future as well. And if you don't understand anywhere, just report it to the faculty. We are very happy to adjust ourselves. So we from our side also are not here to waste our times and your times as well. So from us, you should get benefit. And the same intention is also from our management. So if you don't feel benefited, you just report it to our management. They will
think what adjustments needs to be done. So this is the thing, and two of my colleagues have explained many things technically, and I know that most of the people have not even got 50% of what they have told, because everything was like, most of the things were in technical terms. So even if I am sitting there and somebody is teaching me medical, somebody is teaching me something like pharmacy, I will not be able to understand. The words will be new, the terms will be new, so I will not be understanding. If you go to any webinar or any course, within 1 week you will not be understanding what's going on there. So you need to stay, you need to spend your time, you need to be patient, you need to take whatever it is coming to you, and you need to just wait what is going above your head. And you have many sources like ChatGPT and all, you can explore yourself. Still if you are not able to understand, then then our management is there to make sure that that concept should be like repeated again in different ways, with examples, with different languages if required. So that is there. So right now I am sure that you will be standing and while going you may say that I have not understand even half of the things what happened. So that is not the thing here. You will not understand, I know. Even if I am sitting in one of the things which is new to me, I will not be understanding. This webinar is not to explain complete courses in detail. This is just to give the overview what will be taught in the subject. So I know it's being little elaborative, so I will come back to the point. Okay. So I have said enough, so I will ask some questions just to get started with. So let's say, first of all, like, is it okay if I continue with the same rhythm in English? If not, you can raise your hands. Hindi English no. Okay, I'll use Urdu also as sir has recommended. तो पहले मेरा सवाल ये है कि अगर मैं डी-मार्ट या कुछ बड़े इंडस्ट्रीज चला रहा हूँ, रिलायंस या डी-मार्ट या जीशान होटल रेस्टोरेंट वगैरह चला रहा हूँ, अगर मैं सक्सेसफुल बिजनेस करना चाह रहा हूँ, मैं ओनर हूँ, मैं मैनेजर हूँगा, मैं पैसे लगा रहा हूँ, अगर मैं जीशान रेस्टोरेंट या डी-मार्ट इसको मैं सक्सेसफुल रखना चाह रहा हूँ, मैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सालों साल मैं इस पर जमा रहना चाह रहा हूँ और हर साल मैं बेनिफिट प्रॉफिट करना चाह रहा हूँ, तो आप अपने पे लीजिए कि आप ये बिजनेस कर रहे हैं, तो आपका जो है ना थॉट प्रोसेस क्या रहेगा? एक या दो सेंटेंस में बोल सकते हैं कि ठीक है मैं ये चीज़ करूँगा जिससे मेरा जो है ना बिजनेस ग्रो हो जाएगा। तो अगर किसी के दिमाग में कुछ पॉइंट रहे तो वो रेस कर सकते हैं। जो भी देखिए, यहाँ पे एक टेस्ट ये है कि डेयरनेस का टेस्ट है, आप गलत सही तो यहाँ पे टेस्ट करने का नहीं है, क्योंकि आप लोग सीखने आए, आप लोग प्रोफेशनल्स नहीं हैं और कोई कुछ नहीं समझेगा। यहाँ पे मुझे एक बड़ा बिजनेस चलाना है जो मिलियंस ऑफ जो है ना डॉलर्स का जो है ना बिजनेस है मेरा, मैं चलाना चाह रहा हूँ, मैं आपको मैनेजमेंट दे रहा हूँ, आप क्या फैसले कैसा उसको जो है ना उसको जो है चलाएंगे, प्रॉफिट कराएंगे। उंगली बताऊँगा वो जो है ना उनसे लेंगे आज जवाब इंशाल्लाह, या फिर आप वॉलंटरी ठहर के जो है ना कुछ जाकिर आप कुछ बोलना चाहेंगे? माशाल्लाह कुछ ऐसे भी अफराद हैं यहाँ पे जिसे मैं जानता हूँ माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, जैसे कि इससे पहले उन्होंने कहा था, सारा डाटाबेस से लेके जो है डाटा हम लोग कलेक्ट कर लेंगे, क्या बेसिस पे हम लोग डेवलप कर सकते हैं, हमारा आगे क्या है प्रोसीजर, उसका जो है डाटा ऑल डाटा कलेक्ट करके उसके बाद हम लोग एक जगह रख के उसको एनालिसिस कर सकते हैं। जी, उसको एनालिसिस कर सकते हैं, उसके बेस पे हम लोग डिसीजन ले सकते हैं कि आगे क्या कर सकते हैं, कि हम लोग क्या आगे कुछ बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, लॉसेस क्या है उसके अंदर। बस थैंक यू। बहुत हाथ उठाइए अगर कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं ताकि माइक उन तक पहुँच सके। एक्चुअली अभी जो हम लोग जो भी बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हैं, तो कस्टमर्स के जो रिक्वायरमेंट्स है वो उसको नज़र में रख के अपन उन लोगों को अगर सेटिस्फैक्शन देंगे, अगर उनकी कंप्लेंट्स देंगे तो वो लेके फिर उसको इम्प्रूव करेंगे तो अच्छा रहेगा। बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा जवाब है माशाल्लाह। जवाब दिए। सवाल ये था कि अगर कोई बड़ा बिजनेस चला रहे हैं तो हमारा अप्रोच कैसा रहेगा वो बिज़नेस को स्टैंड करने के लिए। तो इसके लिए कस्टमर का फीडबैक लेना और
वो फीडबैक पे हम वर्कआउट करना बोल के बोले, और एक साहब जो है ना डेटा को अच्छा एनालाइज करना बोल के बोले, उससे हम डिसीजन ले सकते बोले। अल्हम्दुलिल्लाह तीनों जवाब बहुत सही है। इसका एक्यूरेट आंसर ये रहेगा कि अब फ़र्ज़ करिए एक डी मार्ट है, समझ लीजिए डी मार्ट है, महबूब नगर में डी मार्ट है, ठीक है। डी मार्ट में संतूर साबुन जो है ना स्टॉक है हम लोगों के पास, ठीक है। संतूर साबुन पिछले 1 साल में कितना बिका, कितना बेचा मैं संतूर साबुन, कितने हज़ार का बेचा, 10,000 का बेचा, खरीदा कितने का मैं 12,000 का खरीदा, 40% मैं बेचा, 60% मेरे पास स्टॉक में ही है। तो मैं आगे अगले साल में संतूर साबुन लूँगा या नहीं लूँगा? यहाँ पे नहीं लूँगा, क्योंकि मैं नुकसान में जा रहा हूँ। कैसा मालूम हो रहा मैं नहीं लेना बोल के? मेरे पास डेटा है, हिस्टोरिकल डेटा है मेरे पास, 1, 2, 3 या 4 साल का डेटा अगर मैं रहा तो मैं मेरे बिजनेस में कौन सा डिसीजन सही है, कौन सा डिसीजन गलत है, वो मालूम कर सकता हूँ। सिंपल जवाब। तो व्हेन यू हैव हिस्टोरिकल डेटा विथ यू एंड while upon analyzing that historical data you can make the correct decision and grow your business। तो हिस्टोरिकल डेटा रहना पहला शर्त है, सही है ना। अगर मेरे पास सेम संतूर साबुन मैं 1000 पीस मंगाया, 3 महीने में 1000 ख़त्म हो गए, मेरे को जो है ना 5,000 में मेरी खरीदी हुई, 8,000 में मेरी मैं बिका दिया, मैं 3 महीने में जो है ना मेरे को 3,000 का प्रॉफिट हो गया। तो वैसे सिनेरियोस में मैं वो स्टॉक और मंगाऊंगा। ये डिसीजन लेने के लिए मेरे पास पहले डेटा रहना चाहिए, बराबर है। तो हिस्टोरिकल डेटा मेरे पास अगर रहा तो मैं बिजनेस को अच्छे से चला सकता हूँ। वो हिस्टोरिकल डेटा में मेरे पास कस्टमर फीडबैक भी रहेगा, मैं जो खरीदा वो भी रहेगा, जो बेचा वो भी रहेगा, कितना डैमेज हुआ वो भी रहेगा, हर किस्म का जो है ना मैं इंफॉर्मेशन उसमें मेंटेन करूँगा वो हिस्टोरिकल डेटा में। अगर मान लीजिए मैं एक्सेल में मेंटेन कर रहा हूँ, 5 साल का डेटा मेंटेन कर रहा हूँ, एक दिन में ही मेरे को जो है ना हज़ारों का जो है ना रिकॉर्ड जनरेट होगा, क्योंकि मेरा बिजनेस ही जो है ना बहुत बड़ा बिजनेस है मेरा। तो मैं लाखों करोड़ों के रिकॉर्ड्स मैं एक्सेल में मेंटेन नहीं कर सकता हूँ। आई कैन नॉट मेंटेन thousands of lakhs of records in my Excel sheet. My Excel sheet will get hung. It will hang status. If my records gets increased, it will be very difficult for me to maintain everything in the Excel sheet. Even if I have Excel sheet with me with thousands of records, it will be very difficult for me to analyze what product has been sold much in so and so region, for which product I am getting profit, for which product I am getting loss. There will be multiple questions to which we need answers to improve our business. हमारे पास ऐसे कई सवालों के जवाब रहना चाहिए जिससे हम अपना प्रोडक्ट लेना है, नहीं लेना, नफ़े में है नुकसान में है, मालूम कर सकते हैं। जैसे कौन सा प्रोडक्ट कौन सी जगह पे बिक रहा है, कौन सा प्रोडक्ट कौन सी जगह पे नहीं बिक रहा है, फ़ायदा कहाँ पे हो रहा है, नुकसान कहाँ पर हो रहा है, लाना है या नहीं लाना है। ये सब जो है ना हमारे पास अगर हिस्टोरिकल डेटा रहा तो हम वो चीज़ का फैसला कर सकते हैं। और एक्सेल में अगर हम एक्सेल का ऑप्शन ले रहे हैं तो एक्सेल में हम लोगों के पास ये डिसएडवांटेज है कि हमारे पास जैसे ही डेटा बढ़ते रह रहा हमारा एक्सेल स्लो हो जाएगा, मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ बैठ के लैपटॉप लेके अगर एक्सेल में मेंटेन कर रहा हूँ, अगर दूसरी लोकेशन पे हैदराबाद पे अगर कोई है, मैं उसको जो है ना डेटा सेंड करना चाह रहा हूँ, तो मैं हर आधे घंटे में सेंड करना पड़ता मेरे को, कभी भी फ़ोन कर रहा मैं सेंड करना पड़ता उसको डेटा। ये थोड़ा मुश्किल प्रोसेस है, कभी भी फाइल मेरी करप्ट हो सकती है। अब पावर BI जो है ना ऐसा टूल है जिससे हम अट्रैक्टिव चार्ट्स बना सकते हैं, पाई चार्ट या और कॉलम चार्ट, बहुत जो है ना 50 से भी ज़्यादा जो है ना चार्ट्स इसमें हैं। वो चार्ट्स के ज़रिए से हमारा डेटा जो है ना एक ही झलक में हम मालूम कर सकते हैं कि इससे हमें नफ़ा है या नुकसान है। अगर एक्सेल में रहे तो हम तमाम रिकॉर्ड्स को जो है ना फिल्टर करेंगे, फिर बहुत जो है ना मैनुअल प्रोसेस रहेगा उसमें, तो वो उतना सूटेबल नहीं है व्हेन कंपेयर टू पावर BI। तो मेरा आज का जो है ना टॉपिक पावर BI पे ही है। तो पावर BI से हम क्या करेंगे बोले तो हमारे पास डेटा रहेगा, बैकएंड में वो डेटा क्लींस हो जाएगा, जो भी डेटा ज़रूरत नहीं है, फील्ड्स ज़रूरत नहीं है वो हटा देंगे। जो भी फील्ड्स ज़रूरत है हमें, जैसे हमें ऑर्डर नंबर चाहिए, ऑर्डर डेट चाहिए, कितने रुपए का ऑर्डर आया, कितने क्वांटिटी का ऑर्डर आया, ये डिटेल्स है, परचेज में कितना करा, कब परचेज करा, थोड़े डिटेल्स हमें चाहिए। वो डिटेल्स हम रख लेके, वो फील्ड्स हम रख लेके, बाकी के फील्ड्स हम हटा देते हैं बैकएंड में, जो अभी जो है ना प्रीवियस जो है ना सेशंस में हुए हैं। तो जो भी डेटा क्लिनजिंग जो बोल रहे हैं, यही है क्लिनजिंग, मतलब फिल्टर कर लेना जो भी डेटा ज़रूरत नहीं है, जो भी लॉजिक चाहिए वो लॉजिक बैकएंड में जो है ना रख लेना, फील्ड्स नहीं चाहिए नहीं हमारे पास 100 के फील्ड्स रहते,
एक्चुअली 100 के फील्ड्स रहते हैं हमारे पास, उतने सारे फील्ड्स नहीं चाहिए हमें। चूज़ कर लो और डेटा को जो है ना प्रॉपर तरीके से बना लूँ तो उसको डेटा क्लिनजिंग बोलते हैं, डेटा क्लिनजिंग। तो बैकएंड में डेटा क्लिनजिंग होगा तकरीबन, और फ्रंट एंड में जो भी वो फील्ड्स है, वॉट एवर द फील्ड्स वी रिक्वायर वी टेक इट टू द फ्रंट एंड, एंड इन दैट फ्रंट एंड वी डेवलप आवर चार्ट्स इन द फ्रंट एंड रिपोर्ट्स। ये जो है ना एक रिपोर्टिंग टूल है बेसिकली। रिपोर्टिंग टूल में हम चार्ट्स बना सकते हैं, टेबल फॉर्मेट भी ले सकते हैं, चार्ट भी कई किस्म के चार्ट्स हैं इसमें, जिससे जो है ना हर ट्रेंड्स बन के यूज़ कर रहे थे भाई। ट्रेंड्स क्या है बोले तो, अब मैं इस साल जो है ना ये संतूर साबुन जो है ना इतना जो है ना मेरा प्रॉफिट करा, पिछले साल इतना करा, उससे पहले साल में इतना करा, तो मैं ये 3 महीने के जो है 3 साल के जो है ना डेटा ले लेके अगले जो है ना फोरकास्ट, अगले सालों का जो है ना मैं कितना लाना, ज़्यादा लाना, कम लाना, मीडियम लाना, वो जो है ना मालूम कर सकता हूँ फोरकास्टिंग ये ट्रेंड्स के जरिए से। ट्रेंड्स मतलब पिछले जो भी सालों से जो भी ग्रोथ ऊपर नीचे जो जा रहा है ग्राफ हमारा, उसको ट्रेंड्स बोलते हैं। तो ऐसे ट्रेंड्स भी है और मैप्स वगैरह, तकरीबन बहुत चार्ट्स है इसमें। ये टेक्निकल जो है ना हम कोर्स भी सीखेंगे, ये थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें महीना 1.5 महीने का टाइम लगेगा, जिसमें हम थरोली जो है ना इस पावर BI में क्या है जो है सीखेंगे टेक्निकली। और ये पावर BI बहुत डिमांड है मार्केट में, ठीक है ना। अगर आप एक रिपोर्टिंग टूल सीख लिए, जैसे पावर BI हो गया, उसके अलावा टैबलू भी है, उसके अलावा लुमेरा है, और बहुत जो है ना रिपोर्टिंग टूल्स है, जिससे बिजनेस जो है ना डिसीजंस ले सकता है, जिसमें हमें चार्ट्स बनते हैं, राइट। एक अगर आप पावर BI एक अगर आप रिपोर्टिंग टूल सीख लिए तो दूसरा जो है ना सीख लेना बहुत आसान है। एक रिपोर्टिंग टूल से दूसरे रिपोर्टिंग टूल में थोड़ा फ़र्क रहता है, थोड़े में ये फ़ायदे रहते हैं, थोड़े में वो फ़ायदे रहते हैं। अब नया इस साल में कुछ नया आ जाएगा तो ऐसा नहीं समझना कि पीछे हम जो सीखे वो बेकार हो गया बोले, ठीक है ना। अब करंट के गाड़ियाँ आने, इलेक्ट्रिक के गाड़ियाँ आने, तो सबसे नहीं एक ही साथ इलेक्ट्रिक की गाड़ी नहीं खरीदते, पुराने गाड़ियाँ छोड़ देते, फ्यूल के भी चला रहे हैं, पेट्रोल के भी चला रहे हैं, राइट। तो और पेट्रोल की गाड़ी अगर हमें चलाने आते हैं तो हम करंट की गाड़ी भी हम सीखना आसान होता है हमारा। हम कौन सा भी एक टूल अगर सीख लिया रिपोर्टिंग का, दोनों का काम एक ही चाहिए, एक जैसा जगह से दूसरी जगह पहुँचना। पूरे रिपोर्टिंग टूल का मकसद एक ही चाहिए कि अच्छे जो है ना डैशबोर्ड, अच्छे जो है ना चार्ट्स वगैरह बनाना, यही जो है ना मकसद है पूरे रिपोर्टिंग टूल्स का। तो एक रिपोर्टिंग टूल आप अच्छा थरोली सीख लिए, अगर मार्केट में अगर कुछ नया आ गया, डिमांड है, तो उसको अडॉप्ट करने में, उसको सीखने में आपको बहुत कम वक्त लगेगा। एक गाड़ी आप सीख लिए तो दूसरी गाड़ी सीखने में आपको उतना वक्त नहीं लगेगा जितना पहली गाड़ी आप सीख रहे हैं। वो जो ना सिंपल लैंग्वेज में आप समझने के लिए बोल रहा हूँ। तो अब कल के दिन कोई आके आप कंफ्यूज कर दे, अरे पावर BI नहीं भाई ये नया है, ये सीखने, फिर वो सीखने जाते, फिर ऐसा कंफ्यूज नहीं होना। एक रिपोर्टिंग टूल अच्छा सीख लीजिए आप, वो रिपोर्टिंग टूल में आपको आगे स्कोप भी रहेगा इंशाल्लाह। अगर आपको अपग्रेड होना है, कुछ नए मार्केट में नए फीचर्स आए कुछ नए टूल में, तो उसको अडॉप्ट करने में भी आसानी होती है आपको। तो बहरहाल आप यहाँ भी सीख रहे हैं, कल के दिन फ्यूचर में 4-5 साल के बाद कहीं और भी जाके सीखना चाह रहे हैं, तो आप ये बात याद रख लीजिए, एक फ्रंट एंड टूल यानी एक रिपोर्टिंग टूल कैसा भी सीखना होगा आपको, और वो बहुत ईजी रहता है। आपको तकरीबन लॉजिक बैकेंड में ही बनेंगे, आपको पूरा जो है ना बैकेंड में ही बनेंगे, क्लींजिंग वगैरह पूरा बैकेंड में रहेंगे। फ्रंट एंड में आप जो है ना सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप वगैरह रहेगा, आपको बहुत ईजी रहेगा ये सीखने के लिए। हाँ, तो इसके बाद थोड़ा मैं सिस्टम पे बता लेता हूँ ताकि आप फील कर सकें कि पावर BI क्या है और कैसा काम होता है उसमें। तो ये मेरा कंटेंट था एक्चुअली आज का, दिस वाज माय कंटेंट टू डिस्कस टुडे। सो फर्स्ट वन, लाइक आई हैव कंप्लीटेड, आई हैव गिवन अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। देन पावर BI क्या है बेसिकली, ये मैं 2-3 चीज़ें बोल के मैं प्रैक्टिकल पे आता हूँ। तो पावर BI क्या है? पावर BI क्या है? एक बिजनेस एनालिस्ट टूल है। बिजनेस जो भी है उनको एनालाइज करने के लिए जो चार्ट्स बनते हैं इस पर, वो एक टूल है। और ये डेटा विजुअलाइजेशन भी है। आपका डेटा जो भी बैकएंड पे है उसको आप विजुअल यानी देख सकते हो आप इस टूल से। बिजनेस को जो भी एनालिसिस करना है कि फ़ायदा हो रहा, नुकसान हो रहा, जो भी अपने बिजनेस का स्टेटस है उसके लिए, और अपने डेटा को अच्छी तरीके से विजुअलाइज करने के लिए चार्ट्स में वगैरह। तो डेटा पावर BI का ये मकसद है। सिंपल लैंग्वेज में पावर BI क्या है, तो ऐसा अपने पास कम से कम इतना मालूमात रहना कि हाँ इसमें चार्ट्स बनते हैं, और कौन सा भी जो है ना बिजनेस जो भी चल रहा उसमें डिसीजन लेने के लिए, एनालाइज करने के लिए ये पावर BI इस्तेमाल होता है।
तो बैकएंड में जो भी यूज़ कर रहे हैं हम लोग, क्लींजिंग वगैरह बोल रहे हैं, माई SQL भी है उसमें, SQL भी है, तो उसमें सालों का डेटा रहता और वो डेटा एक ऑब्जेक्ट में रहता। तो वो ऑब्जेक्ट में से डेटा, वो ऑब्जेक्ट हम जो है ना पावर BI में इस्तेमाल करके जो है ना डैशबोर्ड बनाते हैं। तो ये टेक्निकल हम समझेंगे बाद में। तो फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे सेल्स का डेटा है, 2 ऑर्डर आए मेरे को फलाने डेट पे 10वें महीने और 11वें महीने में, संतूर साबुन की जो है ना ऑर्डर है प्रोडक्ट, और क्वांटिटी 5 और 4 रेस्पेक्टिव डेट्स में, और इसका अमाउंट, और ये अपना एक टेबल है, और परचेस का अलग टेबल रहता। ऐसे ही डिफरेंट टेबल्स रहते हैं हमारे पास। डिफरेंट टेबल्स में से हम जॉइंस वगैरह करते हैं बैकएंड में, SQL में वगैरह जॉइंस वगैरह करके एक फाइनल जो है ना ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, जिसमें तमाम जॉइंस, फिल्टर्स वगैरह सब लॉजिक्स वगैरह जो है ना हमारे रहते हैं। तो डेटा हम अगर खाली सेल्स का टेबल लेके अगर एनालाइज करना चाह रहे हैं हमारे बिजनेस को, हम नहीं कर सकते। सिर्फ परचेस का लेके एनालाइज करना चाह रहे नहीं कर सकते। थोड़े हम लोगों को सेल्स में भी चाहिए फील्ड, थोड़े परचेस के भी फील्ड चाहिए। दोनों को जो है ना कॉम्बिनेशन में हम अगर रखेंगे और हिस्टोरिकल डेटा हमारे पास रहेगा, तो हम ये प्रोडक्ट का खरीदी करना है या नहीं करना है डिसाइड कर सकते हैं हम लोग। और जो भी बैठते हैं यहाँ पे, हम DMart पे वगैरह काउंटर पे बैठते हैं, उन लोगों के पास सिर्फ सेल्स का इन्फॉर्मेशन होता है, और उन्होंने सिर्फ सेल्स का टेबल फिलअप कर दिया। जो भी जो है ना इन्वेंट्री में रहते, परचेज के डिपार्टमेंट में रहते, उन लोगों के पास जो है ना सिर्फ परचेज का इन्फॉर्मेशन था कि कौन सा स्टॉक कब आया, कितने रुपए स्पेंड करें हम लोग। तो ये अलग अलग जगहों पे रहता डेटा है, हमारा डेटा जो है ना अलग अलग जगह पे रहता। अगर मेरे को एनालाइज करना है अगर बिना पावर BI के, तो मेरे को ये टेबल मैसेज देखना पड़ता, ये टेबल उसमें पड़ता, मेरे को बहुत मैनुअल प्रोसेस बहुत हो जाता है इसमें, और ये बहुत मुश्किल है ऐसा करना हिस्टोरिकल डेटा लेके। तो इसको हम जो है ना पावर BI में जो है ना हम बना सकते हैं, अच्छे चार्ट्स वगैरह बना सकते हैं। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि एक ये पाई चार्ट है ये, ओके। तो इसमें जो है ना सेल्स का जो है ना डेटा है, कौन से रीजन में कितना सेल हुआ बोल के, ठीक है। ये ऑरेंज में जो है ना रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, येलो में जो है ना एशिया, और डार्क येलो में नॉर्थ अमेरिका वगैरह। तो इस डायग्राम से, इस पाई चार्ट से हमें ये मालूम हो रहा है कि कौन से रीजन में सेल्स ज़्यादा हो रहा, कौन से रीजन में सेल्स कम हो रहा। तो ऐसा देख के बिजनेस डिसीजन ले सकता कि ठीक है इसमें सेल ज़्यादा हो रहा है, इसमें ज़्यादा स्टॉक भेजेंगे, इसमें सेल कम हो रहा, इसमें उतना स्टॉक नहीं भेजना जितना जो है ना एशिया में हम भेज रहे हैं। तो ऐसे डिसीजंस ले सकते हैं बिजनेस। कब ले सकते हैं? जब ऐसा चार्ट उन्हें मिलेगा। तो ऐसा चार्ट पावर BI में बनता है, हमारा पावर में बना सकते हैं। इन द सेम वे ये कॉलम चार्ट बोलते हैं इसको, ऐसा कॉलम चार्ट भी बना सकते हैं पावर BI में। ऐसे ही डिफरेंट चार्ट्स बनते हैं पावर BI में। इसलिए देखिए ईस्ट को जो है ना ब्लू से जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ग्रीन जो है ना वेस्ट को, और नॉर्थ एंड साउथ तो डिफरेंट कलर से जो है ना रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें क्वार्टरली है इंफॉर्मेशन। पहले क्वार्टर में ईस्ट इतना सेल करा, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ ऐसा सेल करा। तो आगे जाके जो है ना सबसे ज़्यादा सेल अपने को वेस्ट में हो रहा। तो ऐसा अपने पास डेटा रहा 2, 3, 4 साल का, तो हमें ये मालूम होता कि एज ए बिजनेस, एज ए मैनेजर हमें ऐसे ये मालूम होता कि कौन सी जगह पे जो है ना सेल ज़्यादा हो रहा, कौन सी जगह पे सेल कम हो रहा। तो वो बुनियाद पे हम सही फैसला ले सकते हैं। तो ये इंटेंशन है पावर BI का। इसीलिए बिजनेस बहुत जो है ना इस पर इंटरेस्ट दिखा रहा है, इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। बहुत आसान है ये सीखना भी है, और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत आसान है, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत आसान है, और ये कास्ट इफेक्टिव भी ज़्यादा नहीं है। ये कंपेरेटिवली कस्टमर जो है ना एफर्ट कर सकता, और इसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स है। इसमें हम जब टेक्निकल सेशंस हमारे होंगे तो हमें मालूम पड़ेगा। और इसका आर्किटेक्चर समथिंग लाइक दिस है। इसमें जो है ना सोर्स रहेगा, पहले डेटा कहाँ से आ रहा है, एक्सेल से ले सकते हैं हम लोग, डेटाबेस से ले सकते हैं, ऐसी जगह पे से जो है ना डेटा आएगा। और यहाँ पे जो है ना हमारा ये लेयर पे हमारा डेटा जो है ना बनेगा, चार्ट्स वगैरह बनेंगे हमारे, कॉलम चार्ट या पाई चार्ट जो भी है। और ये चीज़ें हम जो है ना शेयर भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर बैठ के हम किसी को भी शेयर कर सकते हैं चीज़, जैसे हम मैसेज वगैरह, ईमेल वगैरह शेयर करते हैं ना, शेयरिंग का भी ऑप्शन है इसमें। और अट्रैक्टिव जो है ना वेब पेजेस भी इसमें बनते हैं। तो ये एक आर्किटेक्चर है, फ्लो है, एक्सट्रैक्शन होता है इसमें, और ये जो है ट्रांसफॉर्म होता है, लोड और विजुअलाइजेशन।
जैसे मैं बोल रहा था पहले टेबल्स में डिफरेंट टेबल से हम जो है ना डेटा की ज़रूरत पड़ती है हमारे को। सिमिलर है यहाँ पे एक कस्टमर टेबल है, एक एजुकेशनल टेबल है। तो ये तमाम फील्ड जो है ना एक ही टेबल से नहीं आ रहे, डिफरेंट टेबल से आके एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन बन रहा जो हमें बैकएंड में बनेगा हमारा, ये MySQL में बनेगा। ये जो हम बना रहे हैं जॉइन वगैरह जो भी बना रहे हैं इसका एक ऑब्जेक्ट में स्टोर करेंगे हम। वो ऑब्जेक्ट हम जो है ना फ्रंट एंड में यूज़ करेंगे। अगर वो ऑब्जेक्ट हम फ्रंट एंड में यूज़ करेंगे तो ये सारे फील्ड्स जो हमें चाहिए रिपोर्ट बनने के लिए वो सारे फील्ड्स जो है ना हमें दिखाएंगे और हम वो फील्ड्स को लेके हम एक चार्ट वगैरह बनाएंगे। कैसा बनता है मैं भी बताता हूँ। डेटाबेस का आर्किटेक्चर ऐसा रहता है कि ये डेटा हमें एंट्री होता एक एप्लीकेशन के ज़रिए से और वो डेटा जो है ना डेटाबेस में फ्लो होता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। कभी भी हम डेटाबेस में डेटा बोल रहे हैं या फिर इंफॉर्मेशन बोल रहे हैं तो उसका मतलब टेबल्स है। टेबल्स यानी कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, टेक्निकल टर्म्स हम आराम से जो है ना सेशंस में समझेंगे। ओवरऑल क्या है पावर BI समझाना मकसद है इसका। और पावर BI का डिमांड क्यों है? क्योंकि ये आसान है सीखने के लिए और बहुत फास्ट है, ये अफोर्डेबल और पावरफुल क्लाउड बेस है। ये आप यहाँ पे कुछ कर रहे हैं तो आपके कोलीग भी जो है ना सेवरल डिफरेंट लोकेशन से भी रियल टाइम पे देख सकते हैं कि अब मौजूदा रिपोर्ट किस हालत में है बोलिए। और यूनिवर्सल है, हर जगह चलता है, सिर्फ इंडिया वगैरह बोलिए नहीं। ये जो है ना अक्रॉस द वर्ल्ड जो है ना पावर BI को यूज़ कर रहे हैं तो इसका डिमांड बहुत अच्छा है। ठीक है, मैं सिस्टम में एक बार बताता हूँ आपको। तो ये अगेन ये कंपोनेंट्स एक बार बता देंगे, ये 2 स्लाइड्स कंप्लीट कर देंगे, सिस्टम में जाएंगे बेहतर होगा। तो हम जो है ना बैकएंड से डेटा ले रहे हैं, सिर्फ फील्ड्स लेके ड्रैग एंड ड्रॉप करके एक जो है ना वी आर प्रिपेयरिंग द चार्ट्स टू अंडरस्टैंड इफ द बिजनेस इज रनिंग फाइन और नॉट। इसके अलावा सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप सिर्फ चार्ट्स बनाने के अलावा हमारे पास एक जो है ना DAX बल्कि एक फंक्शन है। इसमें हम छोटे मोटे फार्मूलेस भी कर सकते हैं, जैसे एवरेज निकाल सकते हैं किसी चीज़ का निकालना है, या काउंट कर सकते हैं, रिकॉर्ड काउंट, मिनिमम वैल्यू क्या है सेल्स, मैक्सिमम वैल्यू क्या है। और थोड़े लॉजिकल फंक्शंस भी हम ऑपरेट कर सकते हैं। कंडीशन मतलब इफ़ अगर ऐसा हो तो क्या करना है, ऐसा कुछ लॉजिकल फंक्शंस भी कर सकते हैं हम। और जो है ना हम टेक्स्ट फंक्शंस भी हमारे पास जो है टेक्स्ट फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं पावर BI में। जैसे हमें पूरा स्ट्रिंग ज़रूरत नहीं है, हमें जो ना पूरा जो है ना वर्ड ज़रूरत नहीं है, लेफ्ट के सिर्फ 2 वर्ड्स चाहिए या फिर राइट के 2 वर्ड्स चाहिए, ऐसा कुछ तो भी कर सकते हैं। या फिर 2 फील्डों को कंकैटिनेट भी कर सकते हैं, 2 फील्डों को मिला के भी एक नई फील्ड बना के उसमें 2 फील्डों का डेटा मेंटेन कर सकते हैं। जैसे रीजन एक फील्ड है, कंट्री एक फील्ड है। रीजन एशिया है, कंट्री इंडिया है। हम एक ही फील्ड में रीजन और कंट्री देखना चाह रहे हैं तो कंकैटिनेट से हम, तो बोलने का मतलब ये है कि इसमें और भी ऑप्शन है। थोड़ा बहुत जो है ना स्लाइसिंग और डाइसिंग जो बोलते हैं, थोड़ा बहुत जो है ना एडजस्टमेंट कर सकते हैं हम लोग फ्रंट एंड में भी, अगर बैकएंड में नहीं हुआ तो। बैकएंड में तकरीबन सब हो जाता। अगर हम थोड़ी छोटी चीज़ पे रिपोर्ट के बहुत छोटे हिस्से में भी हमें कुछ चेंजेस चाहिए तो बैकएंड में पूरा चेंज नहीं करने के बजाय सिर्फ जो है ना हम फ्रंट एंड में भी थोड़ी चीज़ें कर सकते हैं। इसके अलावा मेजर्स वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं इसमें, मैक्सिमम सेल्स वगैरह, और कैलकुलेटेड कॉलम, नया कॉलम भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास वो क्वांटिटी है और प्राइस है समझिए, और आपको टोटल प्राइस चाहिए। प्राइस है 10 रुपये फॉर एग्जाम्पल, क्वांटिटी है 5, तो इसका 50 हमको रिजल्ट में दिखना है। टोटल प्राइस जो है ना मल्टीप्लाई करें तो आता। तो ऐसे छोटे छोटे फार्मूलेस भी कर सकते हैं इसमें पावर BI में। अच्छा, कंपोनेंट्स पावर BI किस किस शक्ल में हमें मौजूद है? ये क्या है, डेस्कटॉप वर्जन में है जो हम हमारे कोर्स में बताएंगे। ये डेस्कटॉप वर्जन में क्या है, शेयर नहीं कर सकते हम लोग और डेटाबेस को कनेक्ट नहीं कर सकते। डेटाबेस हमें खुद से मतलब यानी एक्सेल से एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, मतलब खुद से बनाना पड़ेगा, जो बहुत सिंपल है। और पावर BI सर्विस ये जो है ना जब हम प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं कंपनीज में, सो दे विल प्रोवाइड दिस काइंड ऑफ पावर BI. It will be like shareable and it will be connected to your database. And in database you will have all your logics and everything sitting in some object, and that object you will be consuming in your front end, यानी पावर BI सर्विस. और क्या है, पावर BI मोबाइल है, मोबाइल में भी एक्सेस कर सकते हैं पावर BI. इससे भी हम हमारे जो है ना डैशबोर्ड्स वगैरह जो भी बन गए हैं उससे भी हम देख सकते हैं. और ये पावर BI गेटवे बल के बनाए, ये डेटाबेस को कनेक्ट होता है, डेटाबेस से डेटा लेता है, लेकिन इसको शेयर नहीं कर सकते. तो ये इसमें ड्रॉबैक है. और एक क्या है मतलब पावर BI रिपोर्ट सर्वर ऑन प्रीमाइस, ये ऑनलाइन है, ये ऑन प्रीमाइस है. ऑन प्रीमाइस मतलब आपके लैपटॉप में रहेगा वो.
पावर बी एक सॉफ्टवेयर, जैसे ये सॉफ्टवेयर पावर बी सॉफ्टवेयर जो है लैपटॉप में इंस्टॉल है, ये इसको ऑन प्रीमाइज बोलते हैं हम लोग। ऑनलाइन मतलब आप सिर्फ एक लिंक से जो है ना उसको ओपन कर सकते हैं कहीं भी। आपके सिस्टम में अगर इंस्टॉल भी नहीं रहा तो आपके पास अगर लिंक है उसकी तो लिंक से भी ओपन कर सकते हैं। जैसे फेसबुक है या फिर फ्लिपकार्ट है, उसका ऐप भी बना के रखे होना, ऐप बनाए तो ऐप मौजूद होना ज़रूरी है सिस्टम में, और उसका लिंक भी बना के रखा होना, लिंक से भी हम एक्सेस कर सकते हैं वेबसाइट को। तो इसी तरह डिफरेंट मॉडल में बना के रखे ऑनलाइन भी काम है। तो ये एक अलग अलग चीज़ों का अलग अलग प्राइस रहेगा। जो भी बिज़नेस अफोर्ड कर सकता है, जो भी बिज़नेस को फ्लेक्सिबिलिटी है उसके हिसाब से बिज़नेस जो है ना सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, लाइसेंस वगैरह ख़रीदता हूँ। तो ये ओवरव्यू है पावर बी का। उम्मीद करता हूँ कि थोड़ी चीज़ें क्लियर हो गए रहेंगे इसमें, एक बार सिस्टम में भी देख लेंगे। तो इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस बता, पावर बी डेस्कटॉप वगैरह रहेगा जो कि अभी हम कंपोनेंट्स में देखे थे। ये वर्जन जो है ना मैं इंस्टॉल करके रखा था इसमें, तो इस पर क्लिक करके हम ओपन कर सकते हैं, और इसमें हम ब्लैंक रिपोर्ट सेलेक्ट करेंगे। अगर हमारा पावर बी अगर सर्वर को कनेक्टेड है, यानी ये सर्वर बेस्ड है, तो हम ये सेलेक्ट करेंगे और सर्वर को कनेक्ट कर लेंगे। हम वहाँ से जो भी ऑब्जेक्ट हमें चाहिए हम ले सकते हैं और फ्रंट एंड में यूज़ कर सकते हैं। तो बहरहाल ये अपने आप को कंफ्यूज मत करिए इस चीज़ों से। ब्लैंक रिपोर्ट बनाएंगे फ़िलहाल। तो अगर मैं ब्लैंक रिपोर्ट से क्लिक करा तो ये स्क्रीन ओपन हो रहा है। इसमें जो है ना ये ऑप्शन यहाँ पे गेट डेटा बोल के, सो वी हैव एन ऑप्शन टू get the data from here, the database data. So I am selecting the CSV format. So we have different options here to select the data from. So Excel से भी डेटा ले सकते हैं, तो और डेटाबेस वगैरह जो है ना भी है यहाँ पर, SQL सर्वर है, राइट। सो मैं CSV सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मेरे CSV फाइल्स दिख रहे हैं जो भी मेरे कंप्यूटर में है, लैपटॉप में है। तो इसमें मैं एक फ़ाइल सेलेक्ट कर रहा हूँ। सो सेलेक्ट करके मैं ओपन करा फाइल। तो इसमें 4 रिकॉर्ड्स है, 4 कॉलम्स है इसमें। ऑर्डर नंबर है, आइटम नंबर, लोकेशन एंड प्राइस, ठीक है। इसको लोड करते हैं। इसको लोड करने के बाद यहाँ पे एक डेटा पैनल है, डेटा का पैनल है। इसमें मेरी फाइल दिख रही है इसमें। अगर मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ तो इसमें मेरे जो भी फील्ड्स हैं वो दिख रहे हैं, राइट। यहाँ ये बिल्डर पैनल में जो भी चार्ट्स अवेलेबल है यहाँ पे पावर बी में वो सारे दिख रहे हैं मेरे को। पाई चार्ट, डोनट चार्ट वगैरह सब दिख रहे हैं। तो अभी मेरे को पाई चार्ट बनाना है, तो पाई चार्ट तो मैं सेलेक्ट करूँगा, स्ट्रक्चर दे देगा वो। अगर ये सेलेक्ट फोकस मोड पे रखे तो स्क्रीन के बराबर आ जाएंगे। तो इसमें मेरे को लेजेंड है, वैल्यूज है। लेजेंड यानी रोज। लेजेंड में मैं लोकेशन रखूँगा, लेजेंड में लोकेशन रखूँगा, और प्राइस में सम वैल्यूज प्राइस रखूँगा। तो इससे मेरे को क्या मालूम, लोकेशन डिफरेंट लोकेशन में क्या क्या जो है ना प्राइस जो है ना कितना प्राइस का जो है ना सेल हुआ है बोल के मालूम हो रहा मेरे को चार्ट में। अगर मैं बिजनेस रन कर रहा हूँ तो मेरे को सेल्स देखना चाह रहा हूँ मैं, कौन से लोकेशन में ज़्यादा सेल हुआ बोल के। सिर्फ एक चार्ट के ज़रिए से मेरे को मालूम आता है कि यहाँ पे देखिए वही सीक्वेंस है जो है ना मेरे को यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे नाम हैदराबाद जो है ना जो ब्लू में है ज़्यादा सेल करा है। ये जो है ना 135,000 जो है ना सेल हुआ इसमें, और 43% सेल मैं हैदराबाद में कर रहा हूँ। इससे मेरे को ये मालूम हो सकता है कि ये लोकेशन में मैं और अच्छा सेल हो रहा, और ये लोकेशन में मेरा प्रोडक्ट और जो है ना परचेस हो सकता है। अब सबसे कम परचेस कश्मीर में जो है ना सबसे कम जो है ना मेरा सेल हुआ, राइट, सिर्फ जो है ना 0.9%। तो ऐसे लोकेशन पे मैं मेरा प्रोडक्ट जो है ना परचेज नहीं करूँगा। तो ऐसे डैशबोर्ड से बिज़नेस को बहुत फ़ायदा होता है इससे, कि कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है, कौन सा प्रोडक्ट नहीं खरीदना है। तो इसी तरीके से बहुत सारे जो है ना चार्ट्स हैं हमारे पास, जिससे डिफरेंट चार्ट्स जो है ना डिफरेंट पर्पस के लिए जो है ना हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ऑलरेडी मैं बना के रखा है थोड़े डेमो में बताने के लिए, जस्ट आपको जो है ना एक ओवरव्यू मिल सके कि इसमें क्या क्या जो है ना चार्ट, कैंडल चार्ट, ये पूरा फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर वगैरह। तो इसमें कई ऑप्शंस हैं, मतलब बहुत ऑप्शंस हैं बना के रखा। बहरहाल टाइम बहुत हो रहा है आप लोगों को भी बैठने में तक, तो इंशाल्लाह हम ये वाइंड अप कर देंगे सेशन को। तो बोलने का मतलब ये है कि पावर BI भी इस कोर्स का कंटेंट है, जो कि
इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से बोलने की कोशिश करेंगे हम लोग। आप लोगों को जो भी डाउट है कोर्स के बारे में